ब्लाइंड बैंकर्स ऑफ इंडिया के यूट्यूब चैनल पर मैं निशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम इस यूट्यूब लाइव में पद्मश्री मुक्ताबेन डगली और पंकज भाई डगली जी का साक्षात्कार यहां पर लेने जा रहे हैं। इस इंटरव्यू को या इस साक्षात्कार को हम प्रारंभ करें उसके पहले मैं अनुरोध करूंगा श्री ज्योति जी से, सुश्री ज्योति जी से कि वो आए और ब्लाइंड बैंकर्स ऑफ इंडिया के बारे में अपने अनुभव हम सबको बताएं। ज्योति जी। Thank you so much, Nishant. Hi viewers, I'm Jyoti from Bank of Baroda, Mumbai. Blind Bankers of India, a thought which was started in the form of a WhatsApp group by few like-minded visually impaired bankers in 2014, has proven to be a very helpful and a one-stop solution to all my queries and confusions, and it has helped me to not only enhance my knowledge, gain knowledge, but to develop develop me as a banker, to begin my career as a banker. And now, since 2015, I am attached with this group, and believe me that at each and every step I have received instant help from all the members of this group. Here I have not only made new friends but expert friends who are bankers, and they are eager to help each other to empower everyone in their career. As a Blind Banker of India, we are working by three perspectives, on the basis of three perspectives, that is bank for bankers, for bank customers, as well as for bank aspirants, the people who are interested to come in banking. So we know that bankers may be few, bank aspirants may be few, but all our viewers who are there viewing us from any platform, they all are customers of one or the other bank. So here I would like to specify that Blind Bankers of India is not only for bankers, but for each and every citizen of the country, because it is delivering the topics which are going to help each and everyone to enhance their knowledge and to know much more about things which we are generally unaware of. Because of the technological advancement, we have expanded our Blind Bankers of India group to Facebook, Twitter, and so on. Yes, you might be wondering, something is missed out. Yes, now wherever you're viewing us now, that is the YouTube channel. This is the very great achievement of our group, that is the YouTube channel, because through YouTube channel we are able to deliver a lot of things to the general public. This has become possible only because of the genuine, enthusiastic bankers who are always on their toes to take initiative and put complete efforts to make our endeavor a grand success. This is the first reason, and second reason is very important, which I would like to quote here, is the support which we have received by all you viewers and also other bankers to make this YouTube channel a grand success. We today have more than 2,700 subscribers. Yes, this has become possible only because of your suggestions, your support, and your comments. So I would request you to please stay tuned today, and please feel to share your comments, suggestions, so that we can again reach great heights in future and bring to you much more important and interesting quality contents. Thank you so much. Over to you, Nishant. धन्यवाद मैडम। मैं अब ज़्यादा आगे न बढ़ाते हुए आज की हमारी इस इंटरव्यू की मॉडरेटर अनामिका जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और आज जो हमारे बीच ये दंपति है, मुक्ताबेन डगली जी तथा पंकज सर, इनको अगर हम माता पिता भी कहें तो कम नहीं, मतलब गलत नहीं होगा, क्योंकि दृष्टिबाधित अनाथ बेटियों को संभालने का कार्य इन्होंने किया है। तो जिनके जीवन में माँ नहीं होती उनको मातृत्व का अनुभव इन लोगों ने कराया है। एक माता पिता की छत्रछाया इन्होंने प्रदान की है। तो मैं अनुरोध करूंगा अनामिका जी से कि वो आज के इस साक्षात्कार को प्रारंभ करें।
धन्यवाद निशांत सर। नमस्कार, मेरे ब्लाइंड बैंकर ऑफ इंडिया के यूट्यूब चैनल में मैं अनामिका आप सभी लोगों को बहुत-बहुत नमस्कार करती हूँ। जैसे कि निशांत सर ने कहा कि मुक्ता मैडम और हमारे पंकज सर को हम माता-पिता कहें, ये कहना कुछ कम ही होगा, क्योंकि वो हमारे लिए इतने ज़्यादा आइडल हैं कि उन्होंने ब्लाइंड होने के बावजूद भी एक संस्था को चलाया है और आज वो संस्था इतनी पुरानी हो गई है और इतने सारे लोगों को उन्होंने सहारा दिया है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मुक्ता मैडम और हमारे पंकज सर, मैं आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। नमस्कार पंकज सर और नमस्कार मुक्ता मैडम। नमस्ते आप सबको। जी, आगे बढ़ाने से पहले मुक्ता मैडम, हम आपसे पहले जानना चाहेंगे कि आप जैसे ब्लाइंड हैं और सर भी हैं, तो क्या आपको ये प्रॉब्लम बचपन से थी या बाद में हुई है? और आपका स्कूल और कॉलेज कहाँ से हुआ है और किन-किन समस्याओं का आपको सामना करना पड़ा? ये हम सब जानना चाहेंगे आपसे। जी, वैसे इरादों पे छा जाए उसे तूफान कहते हैं, इरादों पे छा जाए उसे तूफान कहते हैं और तूफानों से टकराए उसे इंसान कहते हैं। ऐसे इंसान मेरे माँ बाप थे, वो अनपढ़ भी थे और गरीब भी थे, मगर उन दोनों ने बहुत मिलकर कठोर परिश्रम किया, देखे रात दिन देखे बिना, और ऊपर आ गए। वैसे परिश्रमी माँ बाप के घर मेरा जन्म हुआ तब मैं बिल्कुल नॉर्मल थी, और 7 साल की जब मैं हुई तब मेनिंजाइटिस का अटैक आया और मैं ब्लाइंड हो गई। उस वक्त मेरे माँ बाप ने बहुत दवाइयां करवाई, मगर कोई ज्यादा फर्क पड़ा नहीं, रोशनी वापस नहीं आई, इसलिए वो लोग बहुत दुख महसूस करने लगे। ऐसे में एक ब्लाइंड स्कूल से एक टीचर और हमारे गांव का जो अन्य भाई वहां पढ़ते थे, वो दोनों हमारे घर आए और मेरे जो माँ बाप है उनको समझाया कि नेत्रहीन अच्छी तरह शिक्षा ले सकते हैं और अच्छी नौकरियां भी पा सकते हैं और अपना जीवन अच्छी तरह जी सकते हैं। तो ऐसे समय में ऐसी इनकी बात सुनकर उन लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। आज से 50 साल की ये बात है। तो उस वक्त तो ऐसा था अनामिका जी कि सामान्य लड़कियों को भी माँ बाप पढ़ाने के लिए तैयार नहीं थे। तो ऐसे में नेत्रहीन लड़की को पढ़ाने का और अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव भेजने का वो किसी के मन में बैठे ऐसी बात नहीं है। आज से 50 साल की पहले की बात मैं करती हूँ। फिर भी उन लोगों का जो समझाने मनाने के लिए आए थे, उनका बहुत आग्रह था कि अगर आप उनको पढ़ने के लिए नहीं छोड़ेंगे तो हम आपके घर से जाएंगे नहीं। तो उनका आग्रह मानकर मेरे माँ बाप ने भावनगर ब्लाइंड स्कूल में पढ़ाई करने के लिए भेजा। मुझे पढ़ाई का बहुत शौक था, तो स्कूल जाकर मुझे बहुत अच्छा लगा और उड़ना था तो समझो आसमान मिल गया, ऐसा मुझे महसूस हुआ। और मेरे जैसे और लड़कियां और लड़के को देखकर मुझे वैसे भी बहुत अच्छा लगा कि मैं अकेली नहीं हूँ। पहले मुझे ऐसा था कि मैं अकेली ही नेत्रहीन हूँ, तो मैं क्या करूंगी। मेरे माँ बाप को भी ऐसा था कि वो क्या करेगी। तो ऐसे मेरी पढ़ाई शुरू हुई और सिर्फ एक हफ्ते में मैं ब्रेल लिपि बहुत अच्छी तरह लिखना और पढ़ना दोनों सीख गई। वाह, अच्छी बात। वैसे खेलकूद में, पढ़ाई में, सभी में मुझे बहुत रुचि थी और वैसे मैं आगे बढ़ने लगी।
और जो मेरे माँ बाप हैं वैसे घर जाने आने लगी, तो उन लोगों ने महसूस किया कि जो शिक्षा है तो उनके जीवन में अच्छी तरह दिखाई देती है। तो वैसे मेरा पढ़ने का आगे बढ़ने लगा और मैंने कॉलेज पूर्ण किया और उसके बाद स्पेशल नेत्रहीनों के लिए जो बीएड होता है वो भी मैंने किया है। मगर मैं जब पढ़ती थी तभी मुझे नेत्रहीन स्कूलों में जब मैं पढ़ती थी वैसे उस वक्त ही मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जो नेत्रहीन लड़कियां हैं उनको पारिवारिक और व्यक्तिगत बहुत समस्या महसूस कर रही थी, तो वो मैं भी महसूस उनकी समस्याएं कर रही थी और उनको ऐसी समस्या होती थी कि वो किसी को कह नहीं पाती थी और सह भी नहीं पाती थी। तो वैसे पहले मैंने सोचा था कि मैं पढ़ लिख कर बहुत आगे बढ़ूं और उस वक्त क्या था कि हमारे गुजरात में ज्यादातर म्यूजिक को महत्व देते थे, तो मैंने सोचा कि सब म्यूजिक में आगे बढ़ते हैं, म्यूजिक में जॉब लेते हैं, मगर मुझे तो म्यूजिक में आगे नहीं बढ़ना है, आगे पढ़ना है, पीएचडी होना है, बिजनेस करना है और कुछ अलग मैं करना चाहती थी। मगर पढ़ाई के समय मुझे नेत्रहीन लड़कियों का प्रॉब्लम्स देखकर मुझे ऐसा हुआ कि पढ़ लिख कर मुझे और कुछ नहीं होना है, मगर नेत्रहीन लड़कियों को आश्रय मिले, वो अच्छी तरह पढ़कर अपने पैरों पर खड़ी हो सके, ऐसा कुछ मुझे करना है, ऐसी संस्था बनाना है। ऐसा मैंने 14 साल की जब मैं थी तब ठान लिया और ये संकल्प मैंने लिया। तब से मेरा जो शिक्षा का प्रवाह है वो बदल गया। अलबत्त मैंने बीएड तो कर ही लिया, मगर नौकरी के लिए मैंने तमन्ना नहीं रखी थी। मैंने ऐसा सोचा कि नौकरी करके मेरा खुद का अच्छा होगा या मेरे परिवार का अच्छा होगा। अगर मैं संस्था करूंगी तो अनेक नेत्रहीन लड़कियां और लड़की के लिए कुछ हम कर सके, इसलिए मैंने ये संस्था का सोचा और मेरी पढ़ाई के बाद मैं ऐसी संस्था के लिए कुछ करना चाहती थी, इसलिए मैं एक नेत्रहीन संस्था में ज्वाइन हो गई और वहां काम करने लगी और उन लोगों को भी मैंने बताया था कि मुझे नेत्रहीन लड़कियों के लिए कुछ करना है। तो उन लोगों ने पहले बताया था कि यहाँ कोई बात नहीं है, हम तेरे साथ है, करेंगे, मगर बाद में ये सब नहीं हुआ। ऐसी मेरी शिक्षा की यात्रा है। अब मैं पंकज सर से भी जानना चाहूंगी कि वो भी अपने बारे में बताएं कि उनको भी कैसा एक्सपीरियंस रहा अपनी बचपन लाइफ से अभी तक का। मैं तो सिर्फ 5 महीने का था तब से देख नहीं पाता हूँ और बुखार आया और खिंचाव के कारण मेरी आंखें चली गई। इसके बाद मेरे माता पिता ने भी बहुत सा मेरी आंखों को ठीक कराने के लिए बहुत प्रयास किए, मगर कुछ फायदा नहीं हुआ। फिर मुझे पढ़ाई के लिए भेजने को, वहाँ हमारे गांव में ही संस्था थी तो वहाँ मुझे छोड़ जाते थे और पढ़ाई कराने के लिए मेरी कोई तमन्ना नहीं थी, फिर भी मैं जाना भी नहीं चाहता था। फिर भी वो मुझे मेरे भविष्य को उज्जवल देखने के लिए वो जबरदस्ती से, मेरे जो बड़े भाई थे जयसुख भाई है, वो मुझे छोड़ने के लिए आता था। तब मैं बहुत शोर करता था, मैं रोता था, मगर उन्होंने एक न सुनी और आज इसका परिणाम ये हुआ कि मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ
और जब छोटा था तब ऐसा लग रहा था कि जो आसपास में जो लड़के रहते हैं, जो मेरी आयु के जो थे, जो बचपन में मुझसे अच्छी तरह से खेलते नहीं थे, क्योंकि मैं आंखों की तकलीफ के कारण उनके साथ खेल नहीं पाता था, दौड़ नहीं सकता था, बाहर नहीं जा पाता था। इसलिए मुझे बहुत घर में बहुत घुटन महसूस होती थी। घर वाले मुझे बाहर नहीं जाने देते थे, इसलिए बहुत मुझे मेरा मन बहुत मेरा मन बहुत उलझन में था और मुझे घर में भी अच्छा नहीं लगता था। मगर जब जैसे जैसे नेत्रहीन भाइयों के साथ, बच्चों के साथ मैं रहने लगा, मुझमें जब समझदारी आई और मैं अकेला जब बाहर घूमने लगा, सबको मिलने लगा और मेरी पढ़ाई जब आगे बढ़ी, तब मुझे ऐसा लगा कि मैं भले ही नेत्रहीन हूँ, फिर भी मैं सबकी तरह मैं भी जो भी करना चाहूंगा वो कर सकूंगा, ऐसा मुझे विश्वास मन में हो गया। और ऐसे धीरे 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 आगे बढ़ करके मैं BA MA और म्यूजिक में भी संगीत विशारद, शिक्षा विशारद आदि हुआ। B.Ed भी मैंने किया और प्राथमिक शिक्षक, संगीत शिक्षक के रूप में प्राइमरी स्कूल में मैंने देखने वाले बच्चों के साथ काम किया। उसके साथ ब्लाइंड स्कूल अमरेली में मैं अध्यापक के रूप में माध्यमिक विद्यालय में नियुक्त हुआ और उसके बाद में प्रिंसिपल का पद भी मुझे प्राप्त हुआ। और मैंने 6 साल पहले स्वैच्छिक निवृत्ति लेकर के सुरेंद्र नगर में जो हमारी संस्था चल रही है उसको अच्छी तरह से हम दोनों साथ मिलकर के चला सके, इसलिए मैंने मेरा व्यवसाय 6 साल पहले छोड़ दिया और आज हम दोनों इतना अच्छा काम हो सका है नेत्रहीन भाई बहनों के लिए। हम जो कुछ कर सके हैं और करने वाले हैं, इसके लिए मुझे बड़ा संतोष है और मैं परमात्मा का आभारी हूँ कि ईश्वर ने हमें बहुत सहयोग दिया है और ईश्वर की कृपा से आज हम इस गुजरात राज्य में 4 इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, सुरेंद्रनगर, मोरबी, अहमदाबाद और उमरगाम। और सबसे जरूरी जो काम था वो पुनर्वास का जो काम था नेत्रहीनों का, वो अहमदाबाद, उमरगांव और मोरबी में हमने शुरू किया है, जिसका लाभ आज 200 लड़के उठा रहे हैं और वो अपना रोजगार कमा रहे हैं। तो इसलिए मुझे बहुत आज खुशी है कि इतना बड़ा काम अच्छी तरह से हुआ। बिल्कुल सही कहा सर, जहाँ विश्वास होती है वहाँ राहें खुद ब खुद बन जाती हैं। आपको आत्मविश्वास था, इसलिए आज आप इतने अच्छे से अपने आप को साबित कर पाए और आप जॉब में भी थे और जॉब छोड़ के आपने अपने अपना संस्था को चलाने के लिए शुरुआत की। सर मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे कि आप दोनों दंपति हैं, तो आप दोनों की मुलाकात मतलब कैसे हुई और आपको कब लगा कि आप दोनों एक साथ एक सूत्र में बंध के और जीवन निर्वाह कर सकते हैं, वैवाहिक रूप से जी सकते हैं? ऐसा था कि अमरेली की जो संस्था है हमारी, जहाँ मेरा व्यवसाय मैंने 25 साल तक किया, वहाँ हम दोनों मिलते रहते थे और अलग अलग संगठनों में ब्लाइंड के जो नेत्रहीनों के जो संगठन चलते थे उसमें हम ट्रस्टी के रूप में, कारोबारी सभ्य के सदस्य के रूप में हम मिलते थे और हमारी मुलाकात दोनों में होती रहती थी। तो ऐसे में हमारे जो बुजुर्ग एक नेता थे जो नेत्रहीनों का बहुत बड़ा काम कर चुके हैं और उनका भी बड़ा त्याग था, उन्होंने भी जीवन में शादी नहीं की थी और उन्होंने कोई नौकरी भी नहीं की, बैंक बैलेंस भी नहीं किया। तो ऐसे हमारे गुरु जो बाबू भाई बागवानी करते थे अमरेली में, उनको ऐसा लगा कि हम दोनों को समाज सेवा का बड़ा शौक है, बड़ी लगन है और उन्होंने ही सुझाव हमको दिया कि हम दोनों अगर शादी करके जुड़ जाएं तो समाज का अच्छा काम हो सकता है। और उनकी ही प्रेरणा से हम दोनों ने शादी की और दाम्पत्य जीवन की शुरुआत के साथ हमने अपना सेवा यज्ञ शुरू कर दिया और ऐसे हमारा सेवा का काम आगे बढ़ता रहा। अच्छा, बहुत खुशी की बात है कि आप लोग बहुत अच्छे से इस संस्था को चलाते हैं और बहुत खुश भी हैं
और इतना मतलब मीन्स हमारे लिए तो आप आइडल ही हैं। जैसे कि आप सब लोग व्यूअर्स जो देख रहे हैं उनको बताना चाहूंगी कि मैडम को बचपन से ही दूसरों की भलाई के लिए, हेल्प करने के लिए उनके अंदर एक जज्बा था, जिसको उन्होंने 1995 में साकार किया एक संस्था बना के, जिस संस्था का नाम है श्री प्रज्ञा चक्षु महिला पुंज। और मैम मैं ये जानना चाहूंगी कि ये जो आपने संस्था शुरुआत की, वो आपने कैसे की और इसके लिए आपको शुरुआत करने के लिए किस किस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा? आपको इजी से हो गया या बहुत ज्यादा आपको दिक्कत आई, क्या है? और आपने मतलब कितने स्टूडेंट को लेके या कितने बच्चों को लेके आपने ये संस्था शुरू करी? हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे। जी, जब मैंने संकल्प किया था, वो संकल्प अमरेली में फलीभूत नहीं हुआ, क्योंकि उस संस्था का हम दोनों ने मिलकर अच्छी तरह काम किया और उनका जो स्टाफ था उनको हमने ऊपर लाने के लिए रात दिन देखे बिना हमने काम किया। और पहले ही मैंने उन लोगों को बताया था कि मैं इस तरह लड़कियों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा था कि कोई बात नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। मगर बाद में ऐसा हुआ कि उनकी सोच बदल गई और हमको सहयोग देने की बात उन लोगों ने छोड़ दिया। तो हमने सोचा कि हमें जो करना है वैसे तो हम नहीं कर सकेंगे, तो अलग संगठन करके हम कुछ करें। तो वैसे हमने भावनगर डिस्ट्रिक्ट का एक गांव सावरकुंडला था, वहां रजिस्ट्रेशन करवाया और वहां हम काम करना चाहते थे, जो अमरेली से बिल्कुल नजदीक होता था। हमने सोचा था कि पंकज जी की नौकरी भी चालू रहे, क्योंकि हम दोनों कार्य करना चाहते थे, मगर हमारा जो जीवन का आर्थिक बोझ है वो हम समाज पर नहीं डालना चाहते थे, इसलिए उनकी नौकरी भी चालू रहे और हमारा काम भी हो सके, ऐसा हमने सोचा। तो और हर दिन अप डाउन करेंगे और हम लोग काम करते रहेंगे, ऐसा सोचा था। मगर जो हमारे ग्रुप वाले हैं उनको ये बात अच्छी नहीं लगी और हमारे साथ बहुत अन्याय उन लोगों ने किया और हमारे साथ बहुत हमें उनके साथ बहुत संघर्ष करना पड़ा। तो उस वक्त हमने सोचा कि हमारी जो इच्छा है उनको सफल बनाने के लिए अगर हम संघर्ष करते रहेंगे तो हम कार्य नहीं कर पाएंगे, हमारी जो शक्ति है वो संघर्ष में चली जाएगी। इससे अच्छा तो यही है कि हम उन लोगों से दूर होकर हमारा कार्य करें, ताकि जो हमारी शक्ति है वो संघर्ष को छोड़कर अच्छे काम में लग जाए। और ऐसे हम नहीं है वो मोम की मूर्त जो ग्लानि की धूप से पिघल जाए, हम नहीं है वो मोम की मूर्त जो ग्लानि की धूप से पिघल जाए, हम तो है वो संकल्प बल जो मोम को भी पत्थर कर दे। ऐसे हमारा जो संकल्प है उनको हमने पकड़ रखा और सावरकुंडला और अमरेली छोड़कर हमने 200 किलोमीटर दूर सुरेंद्र नगर यानी कि मेरे ससुराल में हमने ये संस्था शुरू की 4 बहनों को लेकर। एक बार हम हमारे घर आए थे, तब मेरे जेठ जसूर भाई उन्होंने पूछा कि आप लोग संस्था करने वाले थे, क्या हुआ? तो हमने कहा कि थोड़ी तकलीफ है इसलिए कर नहीं सके हैं, हम करना तो चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे जो मकान है उस मकान का इस्तेमाल करो और संस्था शुरू करो। मेरे जो ब्रदर इन लॉ है नरेंद्र भाई दीवान, उनकी सोसाइटी थी, तो हमारे और उनके दोनों को जो हमको मकान इस्तेमाल करने के लिए मिल गए और
1996 में हमने ये संस्था 4 लड़कियों को लेकर शुरू किया और आज हमारी इस जो सुरेंद्र नगर की ब्रांच है वहाँ 200 लड़कियां रहकर पढ़ रही हैं। 35 लड़कियां मेंटली चैलेंज और ये ब्लाइंड है, यानी कि मल्टी हैंडीकेप लड़कियां हमारे पास हैं और 20 बुजुर्ग माताएं हैं। और हमारा जो मोरबी है वहाँ 40 फैमिली रहते हैं हमारे अलग अलग फ्लैट में और 150 लड़के अलग अलग फैक्ट्री में करने के लिए जाते हैं। इस तरह हमने इस संस्था की शुरुआत की है और बहुत सारी तकलीफें उठाई। शुरू में तो हमारे खुद के जो पैसे हैं उनके वो पैसे से हमने शुरू किया। बाद में हमारा जो परिवार है वो रिच फैमिली है, तो उनके सहायता से हमारा प्रचार प्रसार हुआ और सुरेंद्र नगर के लोग भी हमारे साथ जुड़ गए और आज हम उन छोटे छोटे मकानों को छोड़कर 5 एकड़ में हमारा ये सारा संकुल फैला हुआ है सुरेंद्र नगर में। इस तरह हमारी संस्था की और कार्य की शुरुआत हुई। बहुत सुंदर मैम, आपने 4 मतलब महिलाओं को लेके, नेत्रहीन महिलाओं को लेके और आज 200 से भी ज्यादा महिलाएं आपके यहाँ पे जुड़ी हुई हैं। तो ये जानकर तो बहुत खुशी होती है कि इतना बड़ा लंबा सफर आपने तय किया और इतने लोगों को आपने। हम जानना चाहेंगे मैम, हमारे व्यूवर्स भी जानना चाहते हैं कि आपकी इस संस्था में जो श्री प्रज्ञा चक्षु महिला कुंज है, इसमें आप मतलब जो नेत्रहीन महिला हैं उनको किस तरीके के आप काम सिखाती हैं या किस तरीके की शिक्षा प्रदान करती हैं, और जो वहाँ की महिलाएं हैं उन्होंने किस तरीके की जॉब करती हैं, क्या काम करती हैं और कैसे मतलब कितने कौन से स्तर तक वो पहुंची हैं, मतलब मेरे जानना चाहते हैं। जी, तो हमारे यहाँ रेसिडेंशियल स्कूल है, तो उसमें सबको रहने का, खाने का, शिक्षा, मेडिकल आदि सब सुविधाएं निःशुल्क दी जाती है और पहली कक्षा से लेकर कॉलेज तक उनको पढ़ाया जाता है। उनके साथ साथ ऑकेशनल ट्रेनिंग में कंप्यूटर, ब्यूटी पार्लर, हैंडीक्राफ्ट, वो सब 1 ईयर सर्टिफाइड कोर्सेज हैं। म्यूजिक का डिग्री कोर्स करवाते हैं और होम साइंस में सुई में धागा डालने से लेकर डीप फ्राई तक काम उनको करवाते हैं। तो अच्छी तरह पढ़ लिख जाती है जो लड़कियां, उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो रेलवे की, स्टाफ सिलेक्शन की और बैंक की आदि सब की एग्जाम देने के लिए उनको तैयारियां करवाते हैं, उनका फॉर्म भी भरते हैं, एग्जाम दिलाने के लिए भी अलग अलग सेंटर में ले जाते हैं और इसके बाद जहां उनको जॉब मिलती है तो वहां उनको छोड़ने के लिए भी हम जाते हैं जी। अच्छी तरह उनको प्रस्तावित करके हम लोग आते हैं और जॉब के बाद जो उनको प्रॉब्लम होता है तो उनके अधिकारी के साथ बात करके वो प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं। और जो लड़कियां अच्छी तरह होम साइंस सीख जाती है, अच्छी गृहिणी बन जाती है, कपड़ों को प्रेस कर लेती हैं, अच्छी तरह अपना घर सजा लेती हैं, अच्छा खाना पका लेती हैं, तो उनकी शादी के लिए भी हम अच्छी तरह काम करते हैं। जो नेत्रहीन लड़कियां हैं और लड़के हैं, उनके माँ बाप उनकी शादी के लिए तैयार नहीं होते हैं। जो लड़की की शादी करते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि नॉर्मल लड़की भी तकलीफ होती है उनको और वापस घर आती है कभी कभी, तो ये तो नेत्रहीन है, प्रॉब्लम तो होगा ही ससुराल में, तो अकेली या बच्चे के साथ वापस आएगी तो हम सारी जिंदगी उसको कैसे संभाल सकते हैं। इससे अच्छा तो यही है कि वो संस्था में ही रहे। मगर लड़की पुख्त उम्र की हो जाती है
और उनकी इच्छा होती है तो हम उनकी शादी अच्छा लड़का ढूंढकर कर देते हैं। लड़का भी हम इस तरह ढूंढते हैं कि जो वो कहाँ किस हाई स्कूल में पढ़ा है, या तो जो नॉर्मल स्कूल में पढ़ा है तो वहाँ के प्रिंसिपल को हम पूछते हैं कि ये लड़का कैसा था। और कॉलेज में पढ़ता हम पूछते हैं कि तेरे ग्रुप में कौन कौन है थे कॉलेज के समय में, तो वो लड़कों को भी हम पूछते हैं कि ये लड़का कैसा है। और जहाँ जॉब करता है तो उनके उत्तराधिकारी को हम पूछते हैं कि ये जो आपके यहाँ जॉब करते हैं तो वो कैसा है जी। तो ऐसे इस तरह हम तलाश करके उनकी शादी करते हैं। और शादी के मौके पर हम लोग उनको चम्मच से लेकर कबोर्ड तक सारी चीजें भेंट करते हैं ताकि उनका घर अच्छी तरह बस जाए। और जिन लड़की को माँ बाप नहीं होता है और या तो माँ बाप के अगेंस्ट में जाकर जो शादी करते हैं तो पहली डिलीवरी के लिए उनको प्रॉब्लम होता है, तो वो भी हम शादी के बाद उनको 7वें महीने श्रीमंत करके यहाँ ले आते हैं। और उनकी अच्छी तरह जिस तरह घर में बहू बेटी की डिलीवरी होती है वैसे हम उनकी डिलीवरी भी करते हैं। तो अब तक हमने 216 लड़कियों की शादी की है और उसमें से 58 लड़कियों की डिलीवरी भी की है। जो वो बच्चा आने के बाद उनको कैसे रखने का, कैसे संभालने का, कैसा पलने में डालने का, कैसे उनको गोद में लेने का, कैसे उनको खिलाने का, दवाई कैसे देने का आदि सब ट्रेनिंग देकर उनको पलना, कपड़े, गहने, खिलौने आदि सब लेकर उनको ससुराल भेजते हैं। इस तरह पहले से लेकर अंत तक हम उनकी देखभाल करते हैं और अपनी बेटी की तरह हम उनके लिए सोचते हैं। और हमारे यहाँ जो मल्टी हैंडीकैप लड़कियां हैं जी, तो जब मेरी मदर थी, मेरी मदर वैसे तो अनपढ़ थी मगर बहुत होशियार थी, तो वो हमेशा कहती थी एक संस्था शुरू करने के बाद कि जो 4 भाई हैं उनके बच्चे तो बड़े हो गए, ये सब तेरे बच्चे हैं तो उनके लिए मैं हमेशा आया करूंगी और जो मेरे से होगा वो करती रहूंगी। तो एक गोपी नाम की लड़की है, वो 1.5 साल की थी, तो जो नाला होता है ना, जी जी जी, हाँ हाँ नाली, हाँ जी, तो उनके नीचे कपड़े में लपेट कर उनको फेंक दिया गया था। ओ गॉड। और पूरे शरीर में जो गरम लोहे का गरम लोहा दागा गया था पूरे शरीर में। तो ऐसी स्थिति में वो वहां पड़ी थी, तो उनका रोना सुनकर आसपास के जो लोग हैं जी, वो उन्होंने देखा तो ये बच्ची थी, तो उन्होंने पुलिस को फोन किया और पुलिस आ गई और उन्होंने लेकर नारी केंद्र नगर में भेज दिया गया। तो उन्होंने देखा नारी केंद्र के हेड ने कि वो तो ब्लाइंड है और बहुत वैसे रो रही थी। तो ऐसे में उन लोगों ने सारे गुजरात में तलाश की कि जांच की कि इनको रखने वाली कोई अगर संस्था हो तो सबने कहा कि भाई इतनी छोटी लड़की को तो हम नहीं रखते हैं। किसी ने हमारा नाम दिया कि में ये संस्था है कि उनको रख सके। तो उस वक्त मेरी मदर उधर थी, उन हेड का जब फोन आया
तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, बुला ले उनको, मैं रखूंगी उनको। तो मेरे पास 35 लड़कियां हैं, तो जब आई हैं तब उनको चलना, कपड़ा पहनना आदि कुछ टॉयलेट सेंस नहीं था, मगर उनको ट्रेन करके आज ज्यादातर जो लड़कियां हैं वो अपने आप इधर उधर घूम सकती है और टॉयलेट सेंस भी आ गई है। और 10 लड़कियां ऐसी हैं कि जो टॉयलेट सेंस उनको नहीं है, तो उनका हम लोग कर लेते हैं। उनके लिए पहले सर्वेंट रखा था, मगर वो क्या करते थे नमक जी कि उनको ज्यादा बाथरूम कर जाती है, पेशाब कर जाती है, तो पानी ज्यादा नहीं पिलाते थे, और ज्यादा टॉयलेट कर जाते हैं तो उनको पूरा खिलाते नहीं थे। तो हमने उस समय सोच लिया कि भाई सर्वेंट नहीं रखने का है, हम खुद ही कर लेंगे। तो हमने उनके लिए हम खुद ही करने लगे सब काम, और मेरे साथ और नेत्रहीन लड़कियां भी जुट गई। और आज 35 लड़कियां ऐसी हैं कि जिनको हम सुबह में नहलाते हैं, अच्छी तरह कपड़े पहनाते हैं, जो जाड़े की मौसम होती है तो बॉडी लोशन लगा के कपड़े पहनाते हैं, स्वेटर आदि सब पहनाते हैं। गर्मी की ऋतु में हम उनको पाउडर छिटक के अच्छी तरह ये करते हैं। और जो 10 लड़कियां हैं जो टॉयलेट सेंस नहीं है, तो उनको हम हमेशा के लिए डायपर नहीं लगाते हैं जी, क्योंकि वो चमड़ी को नुकसान करता है ना, इसलिए हम हमेशा उनको फ्री रखते हैं। और जब टॉयलेट बाथरूम कर जाती हैं तो हम उनको साफ कर लेते हैं। ऐसे हमारे पास 15 साल की, 20 साल की, 25 साल की भी लड़कियां हैं, तो जो हम ये सब उनके लिए करते रहते हैं। और जब छुट्टियां होती है तब ऐसी लड़कियां तो हमारे पास हमेशा रहती ही। हमारे इतनी जो संख्या है हमारे पास, उसमें से 70 लड़कियां और माता बुजुर्ग माताएं ऐसी हैं कि जो हमेशा के लिए यहाँ ही रहती है, यही उनका घर है। मैम आपने इतना बताया, मतलब जानकर इतना खुशी हो रहा है कि मतलब कोई भी लड़की आपके यहाँ आएगी तो मतलब परफेक्ट, जैसे कहते हैं ना कि पूरा आत्मनिर्भर बन जाएगी, उसको कोई मैडम यहाँ मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जैसे घर में माता पिता अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, वैसे मुक्ता माँ और पंकज पिताजी, मतलब मैंने पहले ही शुरू में कहा था कि ये इनको अगर हम माता पिता कहें तो कोई गलत बात नहीं कहेंगे, तो उसी तरीके से वो अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। और मैं यहाँ आगे ये कहना चाहूंगा कि इनके कार्य को हम शब्दों में बयां ही नहीं कर सकते। हमें इनके संस्था की ओर से जो अभी वहाँ स्टूडेंट है, ऐसे एक व्यक्ति का जो वीडियो प्राप्त हुआ है, यदि आपकी अनुमति हो तो हम वो वीडियो मैडम को तथा हमारे यूट्यूब व्यूअर्स को दिखाना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। तो हम ये वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, जरूर आप भी सुनिए। संस्था में जुड़े एक व्यक्ति का अनुभव आप लोगों के सामने साझा किया जा रहा है, जिससे आपको पता खुद ही चल जाएगा कि ये संस्था में कितना और सम्मान मिलता है, अपना आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं। मैडम आप मेरे कंप्यूटर की आवाज सुन पा रही है? जी सर, जी सर। हाँ, तो मैं पहला वीडियो प्ले कर रहा हूँ। जी सर। Films and TV. Now playing one. मेरा नाम जीडिया भूमि विष्णुबाई है। मैं श्री प्रज्ञा चक्षु महिला सेवा कुंज में अभ्यास कर रही हूँ। मैं बहुत छोटी थी तब मेरे मम्मी पापा यहाँ मुझे पढ़ाई करने के लिए छोड़ गए थे। मैं जब यहाँ आई तब बहुत रोती थी, लेकिन जब दीदी ने उनकी गोद में मुझे बिठाया तो तुरंत ही मैं चुप हो गई। जब मैं दीदी की गोद में बैठी तब मुझे अपनापन महसूस हुआ। इस संस्था में हम 200 लड़कियां अभ्यास कर रही हैं, लेकिन किसी को ऐसा नहीं लगता है कि हम पराई जगह पे रहते हैं। सबको ऐसा ही लगता है कि हम अपने घर में ही रहकर हमारी पढ़ाई
हमारी पढ़ाई कर रहे हैं। इस संस्था में कोई भी लड़की कोई भी बीमारी से पीड़ित हो तो कभी भी ऐसा नहीं सोचते हैं कि उसके पीछे कितना खर्च होगा, लेकिन ऐसे ही सोचते हैं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। इस संस्था की कोई भी लड़की ने कभी भी कोई भी चीज की मांग की हो तो उसकी कीमत के सामने देखे बिना वो चीज हमको लाके दी गई है। इस संस्था सिर्फ पढ़ाई में ही आगे बढ़े ऐसा प्रयास नहीं कर रही है, लेकिन सभी कला में पारंगत हो ऐसा प्रयास कर रही है। मैं अभी कॉलेज के दूसरे वर्ग में यानी कि SYBA में अभ्यास कर रही हूँ। मेरी पहली कक्षा से अभी तक का जितना भी खर्च हुआ ये सब खर्च इस संस्था ने ही दिया है। मेरा एक स्वप्न है कि मेरी कॉलेज खत्म हुए फिर शिक्षिका की ट्रेनिंग लूं और एक अच्छी शिक्षिका बनूं और इस संस्था में से मुझे जो भी संस्कार मिले हैं वो समाज में जाकर समाज को ये संस्कार प्रदान करूं। इस संस्था के स्थापक हमारे माता पिता जैसे दीदी और साहब जो हमारी प्रगति और सुविधा के लिए दिन रात नहीं देखते, धूप छांव भी नहीं देखते, वे ऐसे महान विभूति के चरणों में मैं नमन करती हूँ और उसके लिए मैं एक पंक्ति कहती हूँ कि दीदी हमारी माँ के जैसी सबसे प्यारी प्यारी सेवा ही है जीवन उसका, ऐसी है यह नारी। अस्तु। मैं यहाँ एक बात जरूर कहना चाहूंगा अनामिका जी। जी बताइए। कि केवल पैसे होना यही संस्था नहीं निर्माण करता, पर परिवार के लोगों का सहयोग मिलना उससे ही संस्था निर्माण होती है। जैसे मैडम ने अपने इसमें भी कहा कि सबका सहयोग था, सबके सहयोग के कारण, पंकज सर के सहयोग के कारण ही यह संस्था आगे बढ़ पाई है। जरूर मैं हमारे व्यूअर्स से कहूंगा कि अंत तक बने रहें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें हमारे जीवन में सीखनी चाहिए और पंकज सर, मैडम, माता पिता जी से हम सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। मैं अनामिका जी आपसे अनुरोध करूंगा कि आप आगे इंटरव्यू कंटिन्यू करें। जी तो मैडम आपके बारे में जैसा अभी हमने वीडियो देखा तो उसको जानकर तो बहुत ही खुशी हो रही है कि आपको संस्था ना कह के, आपकी मतलब संस्था को संस्था ना कह के अगर हम परिवार बोले या घर बोले तो कुछ बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि आप लोगों ने जैसे माँ बाप के तरह से उन सबका पालन पोषण किया है और उनको अच्छे से जीवन दिया है, तो बहुत ही मतलब प्रशंसा की बात है। मैम मैं जानना चाहूंगी कि जैसे कि आपने बताया कि आपके यहाँ कुछ महिला ऐसी भी हैं जो मनोवैज्ञानिक दशा से थोड़ी प्रॉब्लम में है, तो उनको पालने में आपको बहुत ज्यादा कठिनाई होती है या उसको भी आपको प्रॉब्लम मतलब कैसे फेस करती हैं आप, वो मुझे जानना था। हाँ, उसमें क्या है कि वो सिर्फ मनबुद्धि नहीं होती है, भी होती है, तो उनके लिए बहुत वैसे तो कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं। उनको रात दिन का कोई समझ नहीं होती है और वो खुद अपना नहीं कर पाती हैं और रोना चिल्लाना बोलना, उनको कपड़े का भी भान नहीं रहता है, कभी कभी कपड़े भी निकाल देती हैं, ऐसा सब तो हमेशा करती रहती है। और जब बीमार होती है तो ऐसे समय में उनको संभालना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि अस्पताल में अस्पतालाइज करना होता है, तो हाथ में सुई डालते हैं तो वो स्थिरता से सो नहीं पाती हैं और कोई अगर पकड़ के रखते हैं
तो वो उसमें से छूट के लिए करती रहती है। ऐसे में बहुत उनको संभालने के लिए तकलीफ होती है। और दूसरी ये तकलीफ होती है कि जो लड़कियां हैं तो 12-14 साल की होने के बाद उनको टॉयलेट सेंस तो नहीं होती है, दूसरा भी प्रॉब्लम आ जाता है ना। जी जी जी। संभालना बहुत तकलीफ होता है। तो उनके लिए भी हम खुद सब उनके कपड़े भी धो लेते हैं, उनको कपड़े भी रख देते हैं, आदि सब उनके लिए करते रहते हैं। और सारा दिन उनकी देखभाल रखनी पड़ती है। और आपको आश्चर्य होगा कि मेरे ऑफिस के पास ही ऐसी जो सीनियर मंदबुद्धि और ब्लाइंड लड़कियां हैं उनका कमरा रखा है, ताकि मैं बार-बार जाके उनकी संभाल ले पाऊँ। और हमेशा जो ये हमारी लड़कियां हैं वो ऑफिस में भी आ जाती हैं, मम्मी मम्मी या दीदी दीदी करके, तो उनको भी हम संभाल लेते हैं और प्यार से बुला के उनको वापस कमरे में भी रखाते हैं। और कभी हमारे पास भी ऐसा कोई मेंटली काम नहीं चलता है तो हमारे पास भी बिठा लेते हैं। और इस तरह उनको पारिवारिक माहौल मिले, प्रेम मिले, वो हमारा हमारी ओर से तो ऐसा रहता ही है, मगर हमारे जो कर्मचारी लोग हैं उनकी ओर से भी उनको प्यार मिले और उनका काम हो, ऐसा हमेशा हम सबसे सब जो हमारे हैं वो सहयोग करते हैं। हमारे जो सभी ये मंदबुद्धि बच्चों के साथ जुड़े हुए जो कर्मचारी है, इसके अलावा और भी जो कर्मचारी है वो भी अच्छी तरह इनसे लगाव रखते हैं। और हमारे जो किचन वाले लोग हैं, हमारी जो बहनें हैं, गीता बहन है, वो ये हमारी चंद्रिका बहन है, ऐश्वर्या बहन है, ये वो लोग तो क्या है कि हमारी 2-3 लड़कियां तो ऐसी हैं कि उनको क्रश करके सुला के पिलाना होता है और उनको नाक दबा के दवाइयां आदि सब पिलाना होता है। तो ये सब 15-20 साल की लड़की होती है, मगर वो अपने छोटे बच्चे की तरह उनको ये सब करने में जुड़े हुए हैं। इसलिए हमारी जो कठिनाई, एक मल्टी हैंडीकैप बच्चे को संभालने के लिए एक माँ बाप को भी बहुत तकलीफ महसूस होती है। जो हम हमारे जो 35 ऐसी जो लड़कियां हैं उनको और हमारी 20 बुजुर्ग माताएं हैं उनको संभालने में तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि हमारे साथ हमारी जो तमन्ना है, हमारा जो हृदय का प्रेम है, हमारी जो भावनाएं हैं, उसके साथ हमारे जो कर्मचारी लोग हैं, हमारी जो सेवा वारस रीना बेन जसानी है, ये सब जुड़े हुए हैं। इसलिए हमारा काम वैसे बहुत आसान हो गया है। जी मैम, सच में मैम एक छोटा बच्चा होता है, उसको पालने के लिए हमको कितना तकलीफ करना पड़ता है, और आप तो ऐसी ही लड़कियों को पाल रही हैं जिनको दिखता भी नहीं है और जिनका मानसिक प्रॉब्लम भी है, तो कितना कठिन होता होगा मैं समझ पा रही हूँ। और इसके लिए तो मैं आपको मैम सच में कोटि-कोटि प्रणाम करती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा, मतलब इतना प्यार है आपके पास कि आप उनको भी इतने अच्छे से मतलब पाल रही हैं। ऐसा तो नहीं है अनामिका जी। जी मैम। ईश्वर ने हमको शक्ति दी है, उनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमारे से जिनको ज्यादा जरूरत है उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। हमको हमारे ये सब बच्चे हैं, हमारी बेटियां हैं, ऐसा हम मानते हैं। तो हमारे बच्चे, खुद के बच्चे के लिए माँ बाप तो करते ही है ना, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये तो हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है, वही हम करते हैं। इससे ऊपर जाकर हम कुछ नहीं करते हैं। मैम ये तो आपका बड़प्पन है। मैम ये पूछना चाहती थी, मतलब मेरा पर्सनल क्वेश्चन है ये आपसे कि
जैसे कि बच्चे लोग आपसे ज्यादा अटैच हैं, आपको ज्यादा अपना प्रॉब्लम्स बताते हैं कि सर को ज्यादा बताते हैं, ऐसा क्या किसके साथ ज्यादा शेयर करते हैं? वैसे तो दोनों को लड़कियां अपने जो प्रश्न होते हैं, अपनी समस्याएं होती है, हम दोनों को माता पिता मानते हैं, इसलिए दोनों को अपना अपनी जो तकलीफें हैं वो पेश करती है। जी मैम, जैसे आपने बताया संस्था को शुरू करने के लिए आपको फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम हुई थी और आपने अपनी तरफ से जितना भी हो सकता था उतना किया। हाँ, अभी हमें पता है कि आपको जो गुजरात गवर्नमेंट है उसकी तरफ से भी आपको सहायता मिली है, तो वो कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, आपने कैसे प्रयास किए? क्योंकि गवर्नमेंट से सहायता लेना एक बहुत बड़ा बात है और आपने उनसे कैसे लिया, आपने क्या-क्या किया ऐसा कि जिसकी वजह से आपको गवर्नमेंट की मदद आपको मिली? तो हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि जी। वैसे तो ऐसा है अनामिका जी कि गवर्नमेंट जो वो सहायता है, वैसे शुरू में तो हमारे खुद के पैसे से हमने खुद के मकानों में हमने शुरू किया था। उसके बाद हमारे साथ समाज भी जुड़ गया और इसके बाद 2003 से सोशल डिफेंस है, उन्होंने हमको 35 लड़कियों के लिए पर हेड 500 रुपया से हमारी ग्रांट शुरू की और जो कर्मचारी लोग हैं किचन वो 4th क्लास के, उनको 2000, क्लर्क का 2200 और टीचर का 2800। तो इतने में तो कौन काम करने के लिए आएगा? जी। तो जो गवर्नमेंट की सहायता थी उसमें ट्रस्ट ने भी थोड़ा एक करके कर्मचारी लोग को हमने सैलरी देना शुरू किया और सामान्य जो हमारा खर्च है उनके लिए समाज हमारा साथ हमारा काम देखकर जुड़ गए और आज देखो कि हमारे खुद के पैसे से हमने शुरू किया था, मगर आज हमारी ये जो सुरेंद्रनगर की संस्था है ये 5 एकड़ में फैली हुई है, 80,000 स्क्वायर फीट का बिल्टअप एरिया है और हॉस्टल, किचन, डाइनिंग हॉल, ये स्कूल, ये आदि सब फर्नीचर के साथ सभी साधनों से सच है और हमारे जो 24 घंटा काम करते हैं ऐसे कर्मचारियों के लिए फ्लैट्स भी है, अच्छा एक गेस्ट हाउस भी है जो बाहर से लोग आते हैं तो उसके लिए, और इस तरह हमारा कैंपस हमारा हेड ऑफिस का है और स्कूल बिल्डिंग भी बहुत बढ़िया है हमारा। और दूसरा हमारा जो मोरबी है वहाँ हमने ऐसा सोचा कि आज सब लोग पढ़ लिख कर नहीं सकते हैं, कोई किसी अपनी मेंटली वीकनेस के कारण ज्यादा पढ़ नहीं पाते 10वीं 12वीं से ज्यादा, और कोई ऐसा है कि अपनी पारिवारिक समस्याओं के कारण पढ़ नहीं पाते हैं। तो ऐसे जो लड़के हैं उनको तो कहीं भी नौकरी नहीं मिल सकती है, तो हमने सोचा कि इनके लिए भी कुछ करना चाहिए। वो वैसे एक या दूसरी तरह तो समाज की पर ही निर्भर है और गांव में इधर उधर घूमकर अपना समय पास करते हैं। तो हमने सोचा कि जो मोरबी है वो इंडस्ट्रियल एरिया है जहां विश्व में सबसे अच्छा फ्लोरिंग बनता है टाइल्स मकान में लगाने की, और क्लॉक का भी बहुत सारी फैक्ट्री है उधर। तो हमने सोचा कि वहां एक संस्था डाले। हमारे एक रामदेव नाम का लड़का है, उसने हमको बताया कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो हमने कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं और हमने मोरबी में एक वर्किंग हॉस्टल शुरू किया। सब फैक्ट्री वालों को हमने रिक्वेस्ट किया और लड़कों को काम पे लगाया और उनको हॉस्टल में रखा, और आज हमारे राष्ट्रीय सेवा संस्थान ने हमको
जमीन दी और वहां हमने बहुत अच्छा बढ़िया मकान बनाया और 40 फ्लैट भी बनवाए हैं। वहां जो लड़के शादी करते हैं उनके शादी के लिए तो मैंने आपको बताया कि सब सारी चीजें घर बस जाए इतनी हम देते हैं। हाँ जी और वहाँ फ्लैट भी निःशुल्क देते हैं। जी। और जो सिंगल लड़के होते हैं उनके लिए फ्लैट हॉस्टल है। और सब लोग सुबह काम पे जाते हैं तो उनको टिफिन भी देते हैं। हमारी जो बसें हैं उनको फैक्ट्री तक छोड़ आती हैं और शाम को उनको पिकअप करने के लिए जाते हैं। और मैम जो मोरबी का यूनिट है, दूसरा यूनिट हमारा कॉलेज का अहमदाबाद में है। लड़कियों के लिए तो अहमदाबाद, राजकोट और हमारे सुरेंद्र नगर में कॉलेज की सुविधा थी, मगर नेत्रहीन लड़कों के लिए नहीं थी। तो उसको मेस फी, हॉस्टल फी, कॉलेज फी आदि सबके लिए बहुत तकलीफ महसूस करनी पड़ती थी। और माँ बाप उनको आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि नेत्रहीन होने के बावजूद वो आगे कैसे पढ़ सकेंगे। तो वो उनके पीछे पैसे खर्च करने के लिए तैयार नहीं होते थे। तो आगे जो उनके मित्र लोग कॉलेज में पढ़ते हैं तो उनकी सहायता से वो कॉलेज में एडमिशन ले लेते थे, मगर उनके रहने के लिए बहुत प्रॉब्लम था। तो वैसे स्टूडेंट्स लोग हमारे अरविंद मकवाना, जगदीश मकवाना, रमेश कलजरिया, ऐसे जो तेजस्वी लड़के हैं जो बचपन में अमरेली में हमारे पास पढ़ चुके थे, ऐसे लड़कों ने हमको बताया कि कॉलेज वाले लड़कों को बहुत तकलीफ महसूस करनी पड़ती है, तो उनके लिए कुछ हो जाए। तो हमने अप्रैल में हमारे साथ ये बात हुई और हमने 2010 में अहमदाबाद में कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए छात्रालय शुरू किया, हॉस्टल शुरू किया और वहां भी 80 लड़के रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। और जिस तरह मोरबी है उस तरह उमरगांव जो है मुंबई के पास, वापी के पास, हाँ जी, तो वहां हमने वैसे वर्किंग हॉस्टल शुरू किया। हमारे जो संस्था परिसर है वहां 150 लड़के काम करते हैं और अलग अलग फैक्ट्रियों में और 50 लड़के जाते हैं। तो आज हमें समझो कि 4 लड़कियों से शुरू की इस संस्था में सुरेंद्रनगर, मोरबी, अहमदाबाद और उमरगांव सब मिलकर हमारे पास 800 लोग रह रहे हैं और पढ़ाई और पुनर्वास करके अपना निर्वाह कर रहे हैं। जी। मोरबी संस्था से जुड़े एक बहुत सदस्य है। तो लोगों से हमारा ये नम्र निवेदन है कि इस संस्था को जितना भी हो सके उतना आर्थिक सहयोग देने का कष्ट करें और गवर्नमेंट की ओर से जो एटीसी प्राप्त होता है वो भी हमारे पास है। फिर हमारे पास FCRA यानी फॉरेन से भी अगर कोई डोनेशन देना चाहे तो भी वो दे सकते हैं। और इसके लिए आप हमारा संपर्क pragnachaksu@gmail.com से कर सकते हैं। और हमारे ऑफिस के भी 3 नंबर है जो मैं आपको बताता हूँ 87586711863। दूसरा नंबर है 7698743093 और तीसरा नंबर है 7096609915। ये 3 नंबर पे आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं अपने देखने वालों को बताना चाहूंगी कि जो सर ने नंबर और ईमेल आईडी बताया है हम उसको अपने टेक्स्ट बॉक्स में जरूर लिख के आपको दे देंगे, तो आप वहां से भी उनको देख सकते हैं। निशांत सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे?
जी, मैं यही कहना चाह रहा था कि मोरबी की जो मैडम की संस्था है, उससे जुड़े एक व्यक्ति है, जो अपना अनुभव हमारे साथ साझा कर रहे हैं। तो अनामिका मैडम, आपकी इजाज़त से क्या मैं वो वीडियो प्ले करूँ? जी सर, मैं वही चाह रही थी। ठीक है, आप जी। प्ले कीजिए। और तब तक मैं हमारे व्यूअर्स से ज़रूर कहना चाहूँगा कि वो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को यदि Meeting सब्सक्राइब controls. ना किया हो Roger. तो सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस इंटरव्यू को शेयर करें। अब हम दूसरा वीडियो देखने जा रहे हैं दोस्तों। 2.mp401. Film and now playing. मेरा Pop up. नाम हातिम रंगवाला है। मेरा नाम चेबुनिसा रंगवाला है। मैंने अपनी पढ़ाई अमरेली में प्रज्ञाचक्षु संस्था में की है। वहाँ मैंने मुक्ताबेन डगली और पंकज भाई डगली से अपनी जो शिक्षा है वो प्राप्त की है। और बचपन से जब मैं सब छोटा था तब से उन्होंने मुझे बड़ा किया है और मेरा एजुकेशन उनके हाथों में कंप्लीट हुआ है। और मैंने जब से उन्हें देखा है तब से वो नेत्रहीनों के लिए सेवा कार्य में सबसे तत्पर और सबसे आगे मैंने उनको देखा है। मेरा एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद मैंने अपने खुद का एक शॉप किया था, वो मैं चला रहा था। लेकिन कई सालों के बाद मेरी मुलाकात एक बार फिर से दीदी और साहब यानी मुक्ताबेन और पंकज भाई से हुई। उन्होंने मोरबी स्थित लक्ष्मीनगर गांव में एक संस्था शुरू की और वहाँ से मेरी मुलाकात एक बार फिर से उनके साथ हो गई। और मैंने बचपन से उनको नेत्रहीनों के लिए जो एक सेवा यज्ञ उन्होंने शुरू किया था वो करते हुए देखा था और उन्हीं में से प्रेरणा लेकर मुझे ये कार्य करने की एक अंदरूनी शक्ति प्रदान हुई। और उन दोनों में से प्रेरणा लेकर मैंने उनका आशीर्वाद लेकर वहाँ पर मोरबी में लक्ष्मीनगर में जो प्रज्ञाचक्षु पुनर्वसन सेवा केंद्र चल रहा है वहाँ का संचालन मुझ में विश्वास रखकर मेरे माता पिता समान दीदी और साहब ने मुझे सौंपा। और आज वहाँ पर 100 नेत्रहीन जो लड़के हैं वो अपनी रोजी वहाँ पर कमा रहे हैं। वो अलग अलग फैक्ट्रियों में वहाँ पर काम कर रहे हैं और हम दीदी और साहब का आशीर्वाद लेकर ये जो कार्य हो रहा है उसमें आगे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक 1996 में यहाँ पर सुरेंद्रनगर में जो संस्था शुरू की दीदी और साहब ने 4 लड़कियों को साथ में लेकर ये संस्था शुरू हुई थी। और तब से लेकर आज तक यहाँ की सुरेंद्रनगर की जो संस्था है वो कई नेत्रहीन लड़कियों को पढ़ाकर और उन्हें अच्छी तरह से तैयार कर उनको रसोई वगैरह सिखा के अपने जीवन में एक अलग मुकाम तक उनको पहुंचाया है। और मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ हर साल यहाँ पर समूह लग्न का आयोजन हो रहा है। अभी तक 214 नेत्रहीन लड़कियों की शादियां करवा चुके हैं और 55 डिलीवरी केस जो डिलीवरी करवाई है, फर्स्ट डिलीवरी जो होती है लड़की की वो यहाँ पर हुई है। जिनका कोई नहीं है उनकी ये संस्था ही सब कुछ, उनकी संस्था है, ये संस्था ही उनकी सब कुछ है। और दीदी और साहब सब कुछ उनके माता पिता से लेकर सब कुछ दीदी और साहब है। और हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है और कई उतार चढ़ाव उन्होंने अपने जीवन में देखे हैं और उनकी मेहनत आज वो रंग लाई है कि गुजरात में आज 4 शाखाएं इस संस्था की है। सबसे बड़ी सुरेंद्रनगर में, उसके बाद मोरबी, अहमदाबाद और उमरगांव। हम मोरबी और उमरगांव में पुनर्वसन का कार्य कर रहे हैं। आज मोरबी में और उमरगांव में दोनों को मिलाकर 200 नेत्रहीन अपनी रोजी कमा रहे हैं। मोरबी में हमने एक फ्लैट बनाया हुआ है, फ्लैट बिल्डिंग, हमने उसमें 40 फ्लैट बनाए हैं। उसमें से हमने 35 नेत्रहीन दंपतियों को रहने के लिए निःशुल्क घर दिए हैं। उनको दाताओं की सहायता से हम जितना हो सके
उतना उनके लिए अच्छे से अच्छा कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं। और दीदी और साहब का आशीर्वाद लेकर, उनसे प्रेरणा लेकर हम आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। और जो कार्य हो रहा है उसमें हमारे मोरबीवासी, हमारे मोरबी के जो दातागण हैं, उनका भी बहुत अच्छा, हमें उद्योगपतियों का सहयोग मिल रहा है। और ये जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ दीदी और साहब यानी पंकज भाई और गुप्ता बहन को आभारी है और सब श्रेय उनको जाता है। अगर मेरी मुलाकात उनसे नहीं होती तो शायद आज मैं यहाँ पर बैठा भी नहीं होता, क्योंकि मैंने मेरे जीवन में जो कुछ प्राप्त किया है वो 3 सालों में प्राप्त किया है। मैं 3 साल उनके हाथों में रहा और 3 साल में मैंने जो कुछ सीखा वो बाकी के इतने साल हो गए मैं नहीं सीख पाया। मैं गर्व से कह रहा हूँ, आज मुझे बहुत गर्व है कि वो मेरे माता पिता समान है। उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन है। और जो समाज के लिए, नेत्रहीन समाज के लिए वो काम कर रहे हैं वो अद्वितीय है। मेरा तो ये कहना है कि वो सिर्फ नेत्रहीन समाज के लिए नहीं, हर वर्ग के लोगों के लिए उन्होंने काम किया है। वो मैंने खुद देखा है और समाज उसका साक्षी है। इसीलिए तो उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया है। और संस्था को राष्ट्रपति अवार्ड, गुजरात गौरव अवार्ड, वैसे नारी शक्ति अवार्ड, सैकड़ों अवार्ड संस्था को मिले हैं। वो सब कुछ दीदी और साहब की मेहनत को आभारी है और आप सबके आशीर्वाद से ये सब कुछ शक्य हो पाया है। मैं इनके साथ रहकर सेवा कार्य में मदद कर रही हूँ। दीदी और साहब का एक सपना था अहमदाबाद में एक बड़ा संकुल बनाने का, वो भी अब पूरा होने जा रहा है। दाताश्री की कृपा से अहमदाबाद में एक बढ़िया जमीन संस्था को मिली है। वहां पर 1000 नेत्रहीनों के लिए जो व्यवस्था खड़ी करने वाले हैं, वो भी अब आने वाले समय में, जो साहब दीदी का एक सपना था, एक ड्रीम प्रोजेक्ट में उनके जीवन का कहूंगा कि वहां पर नेत्रहीन दंपतियों के लिए 200 घर बनाने हैं, एक स्कूल बनाना है, छात्रालय बनानी है, एक स्टूडियो बनाना है और एक कंप्यूटर लैब बनानी है। वो जो कुछ उनके सपने हैं वो बहुत जल्द पूरे होने वाले हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे दीदी और साहब को वो तंदुरुस्ती अता करे और उनकी हर मुश्किल को आसान कर दे और उनके छत्र छाया में हम उनसे प्रेरणा लेकर हमसे जो बन सके वो कर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने विचार रखे। ओवर टू यू अनामिका। जैसे कि उसमें कहा गया कि मैडम तंदुरुस्त रहें, हम भी दुआ करते हैं कि मैम और सर दोनों ही अच्छे से स्वस्थ रहें, आगे इसी संस्था को और भी ज़्यादा बढ़ाएं और इतना बढ़ाएं कि मतलब लोगों को आप तक जुड़ने के लिए खुद ब खुद मतलब प्रेरणा मिल रही है उनको और आपके पास आए वो खुद ब खुद। मैम जैसे कि अभी हमने जो वीडियो प्ले की उसमें जिक्र आया कि आपको पद्मश्री मिला है, तो पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी कि आपको पद्मश्री अवार्ड मिला। और दूसरा, जैसे कि 95 में आपने ये संस्था शुरू की, तो आज आपको 25 इयर्स कंप्लीट हुए हैं, तो सिविल जुबली आपने कंप्लीट किया। इसके लिए मैं अपनी पूरी ब्लाइंड बैंक ऑफ इंडिया की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और आपको ये पद्मश्री जो मिला है वो कब मिला, कैसे मिला और आपको मिलने के बाद आपका खुद का अनुभव क्या था, मतलब मीन्स आपको कैसा लग रहा था, वो हमारे साथ साझा कीजिए। जी ऐसा है अनामिका जी कि ये जो पद्मश्री है वो ईश्वर की कृपा और समाज का इतना सहयोग रहा कि जिनको हम शब्द में कह नहीं पाते हैं। पानी मांगा तो समाज ने हमको दूध दिया है और हमारे जो ट्रस्टी लोग हैं, हमारे प्रमुख नवीन भाई हैं, हमारे जो उप प्रमुख डॉक्टर के मेहता कोरोना रेमिडेस के ऑनर हैं, उनके पत्नी मीनाबेन और हमारे जो ट्रस्टी लोग हैं, उन्होंने हमें विश्वास रखा और हमको सहयोग दिया। और हमारे जो कर्मचारी लोग हैं, उन्होंने रात दिन देखे बिना
हमारे साथ जुड़े रहें और जो अपने वो हमारे जो मंदबुद्धि वाला जो काम है वो सामान्य बच्चों की तरह हम उनको संभाल रहे हैं, ऐसे हमारा कठिन जो काम है वो हम कर पाए हैं। हमारी नीलम, महेश्वरी, बिंटू जैसी लड़कियों की वजह से। तो ये सब हमारा जो कार्य है वो पद्मश्री वैसे कहते हैं कि मुझे मिला है, मगर मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। पद्मश्री तो इन सबको मिला है जो मेरे साथ थे। इसलिए मुझे गर्व है कि पद्मश्री तक पहुंचाने के लिए ये सब मेरे साथ हैं और थे, तो मैं पद्मश्री के तक पहुंची हूँ। और मैं तो सिर्फ इनके लिए मेरा नाम ही है और पद्मश्री इन लोगों का है जो यहाँ तक हम लोग पहुंचे हैं। और भी बहुत सारे काम करने का है और जो है वो तो है। और आज की हमारी बात सुनकर और लोग और सदग्रस्त हमारे साथ जुड़ेंगे, तो इससे भी बढ़िया और ज्यादा काम हम करना चाहते हैं। और हमारा जो अहमदाबाद का प्रोजेक्ट है वो शायद 30 करोड़ के आसपास का है। सरयूबेन प्रवीण भाई शाह ने हमको जो जमीन दी है वो 20 करोड़ की है और उनके ऊपर हम 1,50,000 स्क्वायर फीट का अभी पहले स्टेप में काम कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे। उसके बाद भी करने वाले हैं, जहां 1,000 लड़के और परिवार वाले रहकर अपने जीवन के लिए कुछ कर पाएंगे। तो ये सब जो है वो मैंने बताया वैसे उन सब हमारे साथ रहे हैं। हमारे दोनों के जो हमारे परिवार हैं वो उन्होंने भी हमको बहुत सहयोग दिया है। और मैं एक स्त्री हूँ तो मेरे पति ने भी मुझे बहुत सहयोग दिया है। उनका जो खुद के लिए जो कुछ मुझे करने का होता है तो उनकी रिक्वायरमेंट कभी मेरे से नहीं रही है। क्या करूं, क्या चाहिए, तो बोलते हैं कि मेरी चिंता छोड़ो, तुम जो करती हो वो हमेशा करती रहो। तो पद्मश्री इसलिए मुझे मिला है। वैसे मैं उनके काबिल तो नहीं हूँ, फिर भी पद्मश्री से आज मेरा स्टेटस बहुत ऊंचा हो गया है, तो मुझे अच्छा लगता है। और आज आप सब भी हमारे परिवार में शामिल हो गए हैं, तो आप सबको भी मैं धन्यवाद देती हूँ। और ये जो कार्यक्रम सुनने वाले हैं उन सबको भी मैं धन्यवाद देती हूँ और हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी सहायता करते रहे, ऐसी मैं अभ्यर्थना रखती हूँ। बिल्कुल मैम, आपको जो हमारे व्यूअर्स हैं मैं उम्मीद करूंगी कि वो आपके साथ जरूर जुड़े और आप जितना भी आपके लिए कुछ कर सकते हैं हम जरूर करें। हमारे साथ निशांत सर और खालिद सर, आप लोगों में से कुछ पूछना है तो पूछ। मैं पंकज सर से जुड़ना चाहूंगा कि पंकज सर, आप मैडम के साथ पहले से जुड़े हुए हैं। जब संस्था स्थापन हुई आप दोनों ने, मैं दर्शकों को जो बात अनामिका जी भूल चुकी है शायद मैं वो भी बताना चाहूंगा कि इन्होंने खुद की संतान को जन्म देने का एक जो प्रण लिया, आज के इस युग में ये करना बहुत कठिन होता है, और सभी को संभाला। ये जब मैंने पढ़ा, मैंने जब बात की अनामिका मैडम के साथ, सर से और मैडम से, तो सर मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि आपको अन्य दिव्यांग लोगों के लिए भी कार्य करते हैं, जैसे आपने वायरिंग भी कुछ लोगों को सिखाया है, कुछ लोग और अलग काम कर रहे हैं जो हमने पढ़ा है, आपसे सुना है, तो आप आपके अनुभव बताएं संस्था के साथ। ये संस्था परिवार मुझे अपना ही लग रहा है और ये सब बेटियां, ये सब लड़के, उन सब में मैं अपनापन महसूस करता हूँ और मुझे गौरव होता है कि मेरे 216 लड़कियां
और 216 मेरे दामाद हैं। और हर गांव में मेरा घर है, मैं जहाँ भी जाऊं वहाँ मुझे प्रेम अवश्य मिलने वाला है। इसका मुझे बड़ा बहुत गौरव है। इसलिए मुझे कभी अपने संतानों के बारे में मुझे को कभी ऐसा दुख महसूस नहीं होता है कि मेरा आज कुछ नहीं है। मैंने सदा ऐसा ही महसूस किया है कि ये सब मेरा ही है। और मैं यही कहूंगा कि नेत्रहीन समाज का कोई भी व्यक्ति जो है वो हम दोनों के लिए अपने ही है, कोई पराया नहीं है। और हमारे यहाँ गुजरात, सिर्फ गुजरात से ही नहीं, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और मध्य प्रदेश और गोवा से भी बहुत लड़के लड़कियां आते हैं और वो रोजगार कमाते हैं और यहाँ आकर प्रस्थापित होकर अपना घर बसाते हैं। तो बहुत बहुत खुशी होती है और हमें इस अपनेपन से ही हमारा जीवन सुशोभित हुआ है, इसका हमें बड़ा गौरव है। वैसे हमने शादी से पहले ही तय कर लिया था कि हमें खुद के बच्चे नहीं चाहिए, क्योंकि एक दो बच्चे के पीछे अगर हमारा शारीरिक और मानसिक रूप से हमारी सारी जिंदगी उसमें ही चली जाए, ऐसा हम नहीं सोचते। हम एक दो को छोड़कर हजारों लोगों को हम प्यार दे सके और उनका प्यार पा सके, ऐसा हम चाहते थे। इसलिए हम दोनों ने मिलकर खुद के बच्चे करके हमने इस राह ली है। जी, मैं सर से और अनुरोध करूंगा कि जब मतलब जैसे माँ ने तो कहा कि पुरस्कार मायने नहीं रखते, जो कार्य है वो मायने रखता है। तो सर आप हर जगह माँ के साथ रहे हैं, तो कभी कभी बाहर भी जाना पड़ता होगा संस्था के कार्य से, और दिक्कतें तो आपने पहले भी बताई, पर जब बाहर जाना पड़ता है और कोई पहचान का व्यक्ति कहीं बाहर मिल जाए और वहां हमें कहे कि मैं तो आपके संस्था का हूं, तब कैसे लगता है? पहचान का व्यक्ति मिल जाए, फिर क्या बोला आपने? नहीं, अगर कोई पहचान का व्यक्ति बाहर मिले और पहचान दे तो कैसा महसूस होता है? मतलब जो अच्छी भावना होती है वो। हाँ, बहुत बहुत खुशी होती है जब बाहर जाते हैं और जहाँ भी जाते हैं तो लोग अपने लोग मिल जाते हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है कि हमने जो किया है वो सही में वो सफल हुआ है, ऐसा हमें महसूस होता है। जी सर, और मैं यहाँ दर्शकों को और एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि ये हमारे ही किसी जानकार व्यक्ति ने हमें बताया है, जो संस्था में रह चुके हैं, कि जब रमजान का मौसम माह चलता है तब यहाँ पर रमजान के दौरान सुबह जब हमारे मुस्लिम भाई बहन सुबह 4 बजे से जो उनका हाँ वो जो खाने की प्रोसेस होती है सुबह सूर्योदय के पहले, तो वहां पर लड़कियों को ये भी सुविधा मिली है और उनको कोई उसमें ना रोक टोक हुई है, उनको हर तरीके से सहयोग प्रदान किया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि सर्वधर्म समभाव, ये भावना मन में रखकर ये संस्था चलती है। हालांकि हमने कई जगह देखा भी होगा कि जहाँ पर धर्म आड़े आते हैं, पर यहाँ ये संस्था ऐसी है मित्रों कि जहाँ धर्म को छोड़कर सर्वधर्म समभाव की भावना इस संस्था में है। और सर ने और मैडम ने अपने साक्षात्कार में एक जिक्र किया कि हमारे कर्मचारियों, हमारे साथ कार्यरत सभी लोगों के बल पर हम ये काम कर पाते हैं। तो यदि आज की हमारी इस इंटरव्यू की संचालक अनामिका जी मुझे अनुमति दे तो संस्था से जुड़े एक व्यक्ति अपने अनुभव यहाँ पर हमारे साथ साझा करना चाहिए। जी सर, जरूर, बिल्कुल जी, धन्यवाद मैडम। Meeting controls. 2.3.m. Films and now playing. मैं रीना जसानी प्रज्ञा चक्षु महिला सेवा कुंज में जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में फर्ज अदा कर रही हूँ।
मैं पहले जूनागढ़ स्थित ब्लाइंड बच्चों के स्कूल में शिक्षिका के रूप में फर्ज अदा कर रही थी। उन दिनों मैं यहाँ मुक्ता दीदी के साथ रहने के लिए अपने मामा के घर की तरह कई बार आया करती थी। तब मुझे मुक्ता दीदी की कार्य पद्धति और कार्यशैली मुझे बहुत अच्छी लगती थी और यहाँ के स्टाफ परिवार और बच्चियों को जो मुक्ता दीदी से प्यार और ममता मिलती थी और मिलती है आज भी, वो भी मुझे बहुत प्रभावित कर गई और मुझे नेत्रहीन बहनों के लिए कुछ मेरी स्कूल टाइम के अलावा करने के लिए कुछ जी कर रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों न मैं मुक्ता दीदी से ही जुड़ जाऊं और उनके हाथ बटाऊं। तो इसी सोच से मैं बस यहाँ 10 साल से दीदी के साथ जुड़ गई हूँ। दीदी की पर्सनालिटी की कई विशेषताएं हैं। उनकी दृढ़ता के बारे में तो हम सब कई प्रभावित हैं। हम सब स्टाफ मेंबर्स कभी दीदी के सामने मुझसे नहीं हो पाएगा ऐसा बोलने से पहले सोचते हैं। उनके बारे में मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी कि एक बार हमें हेयर स्टाइल की कंपटीशन ब्लाइंड बहनों के लिए रखनी थी। तो दीदी ने सभी टीचर्स को बताया कि बहनों को प्रैक्टिस कराई जाए। तो टीचर्स ने सोचा कि हेयर स्टाइल की प्रैक्टिस और हेयर स्टाइल एक दूसरे के बालों में बनाई जाएगी और हेयर स्टाइल दिखाएगी। लेकिन दीदी ने बोला कि मुझे ऐसी कंपटीशन नहीं चाहिए, मुझे तो ये चाहिए कि सभी ब्लाइंड लड़कियां अपने ही बालों में अपने आप से बाल बनाएगी और हेयर स्टाइल बनाएगी, ऐसी कंपटीशन मुझे करनी है। तो सभी सोचने पड़ गए कि ऐसे कैसे हो सकता है दीदी, वो तो हमसे भी नहीं हो पाता। तो दीदी ने बोला कि ये तो मैं बताऊंगी और ये सब तुम सबको भी मैं सिखाऊंगी कि अपने आप से हेयर स्टाइल कैसे ली जाएगी। उसी वक्त दीदी ने हेयर स्टाइल में सबसे ज्यादा कठिन हेयर स्टाइल जो सागर झूला बोलते हैं, वो सागर झूला अपने ही बालों में लेकर बताई और सभी तब दंग रह गए। और मुझे खुशी होती है बताने से कि उसी दिन 84 लड़कियां पार्टिसिपेट हुई थी और सभी को हेयर स्टाइल सिखाने के लिए और प्रैक्टिस के लिए खुद दीदी जुड़ गई थी और सभी को इतनी प्रैक्टिस करवाई कि 84 हेयर स्टाइल हमें अलग अलग तरीके की देखने को मिली थी। महान विभूति को जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने पद्मश्री से विभूषित किया, तब भी हमें कभी भी ऐसा नहीं लगता कि हमारी दीदी पद्मश्री मिलने के बाद कभी इसमें अहंकार नहीं आया, कभी उसका व्यक्तित्व इतना दुर्लभ नहीं हुआ कि हमें वो मिल नहीं पाया। हम सब तो हमारी दीदी के साथ 24 घंटे रहते हैं। तब भी ऐसा लगता था और आज भी ऐसा लगता है कि हम हमारी माँ के साथ रहते हैं। हम ब्लाइंड बच्चियों की मदर टेरेसा के साथ रहते हैं और उनकी सेवा 24 घंटे देखते हैं। तो और तो मैं क्या बताऊं, हमारी दीदी के जीवन पर अलग अलग लेखकों ने 4 पुस्तकें लिखी हैं। तो ये तो कागज में सागर भरने का जैसा प्रयत्न है। तो और मैं कहीं भी बताना चाहती हूँ, लेकिन शॉर्ट में इतना ही कहूँ कि कई संचालक संस्था के ऐसे होते हैं कि अपने अंतिम सांस तक भी खुशी छोड़ना नहीं चाहते और किसी को भी पद देना नहीं चाहते। लेकिन हमारे दीदी और हमारे पंकज भाई पिता इसी परिवार के ऐसे निराले हैं कि जे खुद की उपस्थिति में भी मुझे ये पद मुझे उसी पद पर नियुक्त किया गया कि उनकी हाजिरी में मैं ट्रेन हो जाऊं, उनके विचार और संस्कार की मैं वारिस हो जाऊं और इसी तरह इसी संस्था की प्रवृत्ति को आगे चलाती रहूं और मेरे साथ सब जुड़ते रहे और इसी संस्था की प्रवृत्ति आगे ही बढ़ती रहे। तो ऐसे महान व्यक्तित्व को मैं वंदन करती थी कि सफल कार्यों में जुड़े हुए, सिर्फ जुड़े हुए ही नहीं, लेकिन जिन्होंने कभी खुद की सुविधा के बारे में सोचा ही नहीं और दीदी को सारा दिन अपना
इन बच्चियों और Your रहती internet हूँ connection तो is मैं unstable जीजा alert. कहूँ तो भी अच्छा रहे। तो ऐसे हमारे पंकज भाई वो दीदी के कार्य से इतने जुड़े हुए हैं कि दीदी के कोई कार्य में कभी ना नहीं बोलते और दीदी के हर प्रयत्न में हर सोच में वो हमेशा साथ ही है। और पंकज भाई पॉजिटिव थिंकिंग के बड़े स्रोत है और हमारे कोई भी कार्य में हम हमारी छोटी भी समस्या सर को जब प्रस्तुत करते हैं तो जल्द ही उनका हम हल पा सकते हैं सर से। और कभी सर भी हमें ना नहीं बोलते, जो करना है From सर Time से Banker of करो, India to लेकिन everyone. आगे Chat बढ़ो, action. कुछ करो, 4:25 बस PM. ये Mika K. तुम्हारा Data है, Soy तुम्हें Night करना Notify है। alert. ये ऐसे ही हम प्रोत्साहित करते रहते हैं और सर तो सदाबहार हास्य के झरने की तरह सभी को प्रोत्साहित करते रहते हैं और मार्गदर्शन देते ही रहते हैं। उनके व्यक्तित्व के बारे में भी एक पुस्तक लिखा गया है। ये दंपति ऐसे हैं कि इसके बारे में और न जाने क्या बोले, न जाने क्या बोले, बस इतना ही बोलूं। मधुबन खुशबू देता है जो औरों को जीवन देता है, जीना उसका जीना है। जो औरों को जीवन देता है, जीना उसका जीना है। बहुत खूब, बहुत खूब। सही, ये लाइन तो बिल्कुल हमारे मम्मी पापा जो आज आए हैं यहाँ, उनके लिए बिल्कुल सही सेट होती है कि औरों को जीवन देता है वही मधुबन होता है। तो मैम, आपके तो व्यक्तिगत को जान के हमारे दर्शकों को बहुत खुशी हो रही होगी कि इतना ज़्यादा कठिन परिश्रम करने के बाद आपने इतना बड़ा प्रांगण आपने बनाया है, इतना बड़ा संस्था आपने बनाई है और लोगों को इतना अच्छे से रखा है। बिल्कुल कहीं कोई कमी महसूस नहीं हो रही इतने सारी वीडियोज़ देखने के बाद, आपसे बात करने के बाद। और जो हमारे सर हैं पंकज सर, वो तो जैसा उन्होंने मैम ने कहा कि पॉजिटिव थिंकिंग के हैं, तो बिल्कुल सर से जब मैंने बात की है तब सर ने मुझे एकदम पॉजिटिव ही रिएक्शन दिया है। मैं उनसे जितनी बार भी बात की हूँ, बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करते हैं। तो निशांत सर, मैं पूछना चाहूँगी कोई हमारे दर्शकों का कोई क्वेश्चन है या खाली सर कुछ पूछना चाहेंगे? हालांकि बंडी किरण कुमार जी ने एक सवाल तो पूछा है कि ये संस्था स्थापित करने की प्रेरणा कैसे मिली, पर मैडम ने ये जवाब पहले भी दिया है साक्षात्कार में ही। तो अगर पंकज सर वापस एक बार शॉर्ट में उनको बता दे, बंडी किरण कुमार जी जो पहले नहीं थे शायद, तो उनके इस सवाल का जवाब यदि सर। ये प्रेरणा तो ऐसे ही कि उनके साथ जो बच्चियां पढ़ रही थी, उन बच्चियों को जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, उनको छुट्टियों में घर जाने की कोई सुविधा नहीं थी, तो ऐसी बच्चियों को अपने घर ले जाया करती थी। तो ऐसी बच्चियों को एक घर मिले, ऐसी बच्चियों को एक अपना परिवार मिले और इस परिवार का प्रेम मिले, इस उद्देश्य के साथ ही, इस प्रेरणा के साथ ही उन्होंने यह संस्था स्थापित करने का एक संकल्प किया था और वह संकल्प पूरा करके आज वो बहुत खुश है और उसे अनोखा सुख प्राप्त हो रहा है। मैं मुक्ता मैम से और पंकज सर दोनों से पूछना चाहूंगी कि आप हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए कुछ बताना चाहेंगे, कुछ उनको टिप्स देना संदेश, क्योंकि संदेश देना चाहेंगे क्योंकि आज का ये जग ऐसा है, या हमारी युवा पीढ़ी ऐसी है, जैसे मैं, अनामिका जी या अन्य लोग जो युवा है, हम बहुत छोटी बात, छोटे किस्सों पर अपना ये मनोबल खो बैठते हैं या हम परेशानी में घिर जाते हैं। तो आप हमें क्या मार्गदर्शन करना चाहेंगे कि हम अपनी कठिनाइयों को, बहुत छोटी कठिनाइयों पे भी ना बहुत जल्दी हेलो। हाँ सर बोलिए। हेलो। ऐसा है कि ईश्वर जो है वो उसने सबको एक सल की शक्ति दी है, मगर हर एक लोग अपने को अपने मन से छोटा या बड़ा बनाने का प्रयत्न करते रहते हैं। तो जो हमारी शक्ति है उनका
योग्य हम उपयोग करते हैं तो जरूर हम जीवन में वो हम अच्छी तरह कर पाएंगे। वो हमको खुद को ये अनुभव हुआ है। पहले दृढ़ संकल्प कर ले, फिर उनको सफल करने के लिए अगर आगे बढ़ते रहेंगे तो कभी भी उनको अपने जीवन में तकलीफ नहीं आएगी। वो अच्छी तरह आगे बढ़ पाएंगे। वैसे कहते हैं ना कि अक्सर गिरकर अकेला संभल सकता हूँ मैं, अक्सर गिरकर अकेला संभल सकता हूँ मैं, अगर हाथ पकड़ लो मेरा तो दुनिया बदल सकता हूँ मैं। ऐसे पहले हमें खुद को संभालने की शक्ति प्राप्त करनी होती है, तो दूसरा सहयोग हमें अपने आप मिल जाता है और अच्छे से अच्छा कार्य हम कर पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा मैम ने कि आत्मविश्वास जहाँ होता है हम वहाँ कुछ भी कर सकते हैं, और जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स है चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, हम उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से अलग करके और उससे आगे हम बढ़ सकते हैं। अपनी कमजोरी को आप जो भी आपको प्रॉब्लम्स है, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो आंखों की हो, चाहे फिजिकली हैंडीकैप्स हो, आप अपनी कमजोरियों को आप कमजोरी ना बना के उसको अपनी ताकत बनाएं तो आगे कितना भी आगे बढ़ सकते हैं। और निशांत सर अभी पंकज सर से ही वही सवाल हमारा है कि वो भी बताए उनका क्या मार्गदर्शन। बस मैं तो सबको यही कहूंगा कि अपने जीवन में से कुछ ऐसे पल भी हम निकालें, कुछ ऐसा समय हम निकालें जो हम दूसरों के लिए खर्च कर सकें। अपनी कमाई में से कुछ पैसे हम ऐसे निकालें जो दूसरों के लिए हम खर्च कर सकें, और अपना जो जीवन है वो दूसरों के लिए उपयोगी बने और अपने जीवन से दूसरों को हम कुछ फायदा पहुंचाए, अपने शरीर से दूसरों की हम सेवा करें। यही लोगों को मेरा संदेश है। सिर्फ अपने ही सुखों में हम अगर व्यस्त रहेंगे तो दुनिया का काम, लोगों का काम, दुखियों का काम नहीं होगा। इसलिए सब थोड़ा थोड़ा करेंगे तो भी बहुत बड़ा काम हो सकता है। इसलिए सबको ऐसे कामों में जुड़ने का मेरा नम्र निवेदन है। धन्यवाद सर। और अभी शायद खालिद सर हैं क्या? जी, सबसे पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत नमस्कार। और मैं ये कह सकता हूँ कि आज का युग जहाँ भाई भतीजावाद, पैसा, सफलता के पीछे पूरी दुनिया भाग रही है, कहीं कोई लिमिट नहीं है। आज मैं बाइक पे हूँ तो कल मुझे कार चाहिए, परसों मुझे उससे भी बढ़िया कार चाहिए, और ऐसे ही अनंत इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। ऐसे युग में आप जैसे भी व्यक्ति हैं जो खुद के बच्चों को जन्म ना दे करके दृष्टिबाधित समाज के भले के लिए कार्य करते हैं। जब भी चर्चा होती है, इतिहास में जब भी लिखा जाता है, जब भी पढ़ा जाता है, तो विकलांग या विकलांगता के जितनी क्रांतिकारी मूवमेंट्स हुए हैं, सब कहीं न कहीं शहरों तक नियंत्रित रहे हैं, और वो भी शहरों नहीं बल्कि राज्यों की राजधानियों तक। आप एक गुजरात के छोटे शहर में इतनी बड़ी संस्था चला रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि पूरे भारतवर्ष में दृष्टिबाधित महिलाओं के लिए आपसे बड़ी संस्था कोई चला रहा है। हम सबको आज आप दोनों से सीखने की आवश्यकता है, और मैं ये जानना चाहूँगा कि पहले के समाज में और आज के समाज में आपने लगभग 60 वर्ष की आयु पूरी की है,
क्या परिवर्तन लोगों की सोच में आया है, उस पे थोड़ा प्रकाश डालें। जय हिंद। पहले जो संकुचितता थी लोगों में, नेत्रहीनों के बारे में लोगों को जो पहचान नहीं थी, वो आज नेत्रहीनों की शक्तियों को पहचानने का प्रयास करते हैं। पहले दिव्यांगों को, विकलांगों को देख करके मजाक उड़ाया जाता था। आज ऐसी हालत नहीं है और उनको सहयोग दिया जाता है और उनको उनके सुख के बारे में भी सोचा जाता है। पहले ऐसा था कि लोग जो दान देते थे, जो चंदा देते थे, वो पुण्य कमाने के लिए देते थे। आज अपना फर्ज समझ करके देते हैं, तो इससे बड़ा समाज को भी फायदा होता है। और आज जो समाज का परिवर्तन हुआ है, इससे कई दिव्यांगों का भला होता है। इसका हमें बड़ा आनंद है। जी सर। तो निशांत सर, अभी हम कोई क्वेश्चंस मेरे पास तो नहीं है, आपके पास कोई है तो? नहीं तो जी नहीं, मेरे पास भी कोई सवाल तो अब तक नहीं है। रजा जी हमारे साथ जुड़े हैं। रजा जी, यदि आपके पास कोई सवाल हो तो बताएं, या मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। अनामिका जी। जी मैम। एक रामनाथ कोविंद जी का वीडियो आपने भेजा है, अगर जी मैम, जी मुझे पता है। मैं अभी क्वेश्चंस के बाद मैं वही करने वाली थी। रजा सर, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी, रजा जी शायद नहीं, मतलब कोई क्वेश्चन नहीं है, इसलिए उन्होंने अनम्यूट नहीं किया है खुद को। तो मैं आप सभी हमारे व्यूअर्स से और मैडम से भी कहूंगा कि हमारे पास एक जो म्यूजिक टीचर है मैडम के ही स्कूल में, उन्होंने और उनके यहाँ जो पढ़ रही छात्राएं हैं, उन्होंने एक गीत मैडम के लिए और सर के लिए प्रस्तुत किया है। उसको हम आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। सभी यूट्यूब व्यूअर्स से अनुरोध है, जरूर सुने और इस इंटरव्यू को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। Meeting control. Diddy अनामिका जी, आप मेरा कंप्यूटर साउंड सुन पा रही है शायद? जी क्लियर आ रहा है। ओके मैम। दीदी हमारी माँ के जैसी सबसे प्यारी प्यारी, सेवा ही है जीवन उसका, ऐसी है यह नारी। नमस्कार दोस्तों, विपुल व्यास दर्शन यहाँ पर मतलब प्रज्ञा चक्षु महिला सेवा कुंज में मुझे मौका मिला है संगीत अध्यापक के रूप में काम करने का। यह गीत, यह काव्य भी उन दिनों की रचना है दोस्तों, जब मेरी यहाँ पर नियुक्ति हुई थी 2001-2 के आसपास में। तो पहले वैसे तो दीदी के बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है, क्योंकि 2 हिस्सों में मैं दीदी के साथ के अपने जो अनुभव है उसे बांट सकता हूँ। एक तो मैंने बहुत करीब से उन्हें अध्यापक के रूप में देखा है, अनुभव किया है, और वो भी विद्यार्थी बनकर कुछ पाया है, बहुत कुछ पाया है। और साथ में जब यहाँ मेरी नियुक्ति हुई प्रज्ञा चक्षु महिला सेवा कुंज में, तो एक संचालक के रूप में उनके साथ मेरी अनुभव की यात्रा शुरू हुई। अब इतना ही संक्षिप्त में कहना चाहूँगा। वैसे तो जितना भी कहा जाए, मैंने कहा कम है, लेकिन फिर भी इतना ही कहकर मैं अपनी बात को पूरा करूँगा कि मेरा एक संकल्प था, एक मेरी जिद थी कि मैं कभी भी प्रशस्ति काव्य यानी कि किसी व्यक्ति के बारे में कभी नहीं लिखूंगा कोई कविता। ऐसा बस मन में बचपन से ही ऐसा एक, वैसे नकारात्मक कहूँगा लेकिन फिर भी था, वह एक जिद थी। तो मेरी वह जिद को इस दीदी ने तोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पर आया तो जो माहौल और उनकी त्याग, तपश्चर्या और समर्पण को देखा, तो शब्द कुछ इस प्रकार से निकल ही पड़े। और वही शब्दों को फिर मैंने स्वर दिए और मेरी इन छात्राओं ने उसे गीत के रूप में गाकर समग्र
इस रचना को जीवंत बना दिया। तो प्रस्तुत है इस रचना के कुछ अंश आपके सामने। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर गीत आपके लिए, आपके ही प्रांगण से जो लड़कियों ने गाया, बहुत सुंदर था वो। और अभी निशांत सर, मैं इस प्रोग्राम को समापन पे करती हूँ और मुक्ता मैडम और हमारे पंकज सर यहाँ आए, उनके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। और ये ऐसी नारी हैं जिसको हम मतलब जिन्होंने अपने लाइफ में अपने प्रॉब्लम्स को तो सरल बनाया ही, अपने जीवन को, उन्होंने दूसरों के जीवन को भी सरल बनाने के लिए जितने कार्य किए हैं और जितना अभी आज सफल हैं, तो उसको जानकर हमें बहुत खुशी होती है। और उनका साथ उनके ही जो पति हैं उन्होंने दिया, पंकज सर ने, तो बहुत खुशी होती है कि दोनों दाम्पत्य जीवन में भी बहुत खुश हैं और उन्हें समाज के लिए भी बहुत कुछ कर रहे हैं और एक साथ होके, एक रूप होके वो दुनिया के लिए काम कर रहे हैं। तो बहुत खुशी होती है कि हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक इस चीज़ को समझें और सीखें कुछ कि लाइफ में अपनी प्रॉब्लम्स तो होती ही हैं, उसको तो दूर करना हम कर सकते हैं, पर दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करना ये बहुत बड़ा काम होता है, जो कि सर ने और मैम ने मिलके किया। हमको बहुत जानकर खुशी हुई और वो लोग यहाँ आए। हमारी ब्लाइंड बैंक ऑफ इंडिया की टीम की तरफ से हम मैडम का और सर का बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं और दिल से उनको नमन करते हैं कि वो इतनी बड़ी संस्था चला रहे हैं। दुआ करते हैं कि आगे ये संस्था और भी ज़्यादा चले और अच्छे से सफल रहे, लोग बहुत ज़्यादा जुड़ें और वहाँ से जितनी भी लड़कियाँ और लड़के जब बाहर आएँ, तो लोगों को इतनी खुशी हो जानकर कि ये वहाँ से पढ़ के और वहाँ से शिक्षा ग्रहण करके आए हैं। तो मैं अपने निशांत सर जिन्होंने मेरा साथ दिया, उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। खालिद सर जो हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। रजत जी थे हमारे साथ जुड़े हुए, वो किसी कारणवश शायद चले गए हैं, तो उनका भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जिन लोगों ने हमारा ब्लाइंड बैंक ऑफ इंडिया का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वो सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के बाद इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और इस इंटरव्यू को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यही आपसे मैं दुआ करती हूँ और अनुरोध करती हूँ और आज का प्रोग्राम मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। हम भी आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपको बहुत धन्यवाद, आपने हम सबको, हम दोनों को याद किया, हमारी संस्था को याद किया और सब लोगों के सामने हमको पेश किया।
इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं यहाँ ब्लाइंड बैंकर्स ऑफ इंडिया की ओर से सभी दर्शकों को कहना चाहूँगा कि आप आर्थिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से जिस तरीके से इस संस्था से जुड़ना चाहे जरूर जुड़े। अपने हुनर का, अपने अर्जन का कुछ लाभ यदि अन्य लोगों को भी आप दे सके तो ये जरूर कोशिश करें। और मैं पंकज सर और माता जी से इतना ही कहूँगा कि जैसे ही कोविड की कोई सिचुएशन नॉर्मल होती है, हम सब जरूर आपसे मिलने जरूर बधाई, अवश्य बधाई, बहुत खुशी होगी। और इस साक्षात्कार के लिए हमने जो कम्युनिकेशन बनाया था उसे बनाने में हमें तेंजिन मैडम ने सहयोग दिया ताकि हम बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और इस इंटरव्यू को देखने के लिए लोगों को प्रेरित कर सके। तो मैं तेंजिन मैडम का शुक्रिया अदा करता हूं कि उनके अच्छे ड्राफ्टिंग के कारण हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। अनामिका मैडम का धन्यवाद अदा करूंगा कि उन्होंने इस साक्षात्कार को मॉडरेट किया। और अब फिर से आपसे मुलाकात होगी शाम को 7 बजे आज के अंग्रेजी क्लास में। यही कहकर आप सभी की विदा लेता हूं।